Sri Gurupyo Nama. Hi students, myself Dr. Anita James. I welcome all of you to the new session of Ashtanga Hridaya classes, and today's class is on Dravyadi Vijnaniyam, chapter number 9 of Ashtanga Hridaya Sutrasthana. So let's get started with the topic. So what is Dravyadi Vijnaniya? The chapter which gives us the knowledge about substances, etc. Dravya Adi, Dravya, etc. Substance, etc. अधाथो द्रव्यादि विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहासमाहो आत्रयादयो महर्षयः. We will now expound the chapter Dravyadi Vijnaniya, knowledge of substances, etc. thus said by Atreya and other great sages. Dravya, what do you mean by Dravya? Dravya matlab substance. Any substance is called as Dravya. And Rasadi, there is a term called Rasadi. Rasa, Guna, वीर्य विभाग एंड प्रभाव. दीज रस अर्थात टेस्ट, गुण अर्थात क्वालिटी, वीर्य अर्थात स्ट्रेंथ उष्ण वीर्य शीत वीर्य, विभाग इज ऑफ 3 टाइप्स दैट इज स्वादु अम्ल एंड कटु, और प्रभाव द स्पेशल इफेक्ट ऑफ ए द्रव्य. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर ऑफ द्रव्यादि विज्ञानीयम. We will discuss about rasa that is present in a dravya, guna that is present in a dravya, virya that is present in a dravya, vipaka that is present in a dravya, and prabhava, the special effect of a dravya. So these rasa, guna, virya, vipaka and prabhava is called as rasadi, and they are present in a samavaya sambandha in dravya. Clear? So let's start with the sloka. Importance. First sloka is about the importance of dravya. Dravyameva rasadinam shreshtam tehi tadashraya. द्रव्य की प्रदान के बारे में बोल रहे हैं फर्स्ट श्लोक में. रस आदि में ऑलरेडी बताया, रस गुण वीर्य विभाग एंड प्रभाव, दैट इज रस आदि, रस एक्सेट्रा. रस आदि में द्रव्य की प्रदान होता है क्योंकि ये रस आदि द्रव्य में आश्रित होकर रहता है. बिकॉज रस एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द्रव्य, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द्रव्य, एंड दैट इज वाई रसादि, व्हेन वी टेक रसादि, Dravya is more important because Dravya is the ashraya for rasa etc. बाकी qualities. Clear? पंचभूतात्मकम तत्तुक्ष्मा अधिष्ठाय जायते. द्रव्य पंचमहाभूत से बना है. पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, दैट इज पंचमहाभूत. सो द्रव्य पंचमहाभूत से बना है. एंड और पृथ्वी, क्ष्मा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है. पृथ्वी को आश्रय लेकर द्रव्य का उत्पन्न होता है. ठीक है. अम्बु योनि अग्नि पवन नाभसाम समवायतः तत् निवृत्तेर विशेषतश्च. द्रव्य की उत्पत्ति में कारण जल है और अग्नि, वायु तथा आकाश इसमें समवाय संबंध से है. अनसेपरेबल रिलेशन को हम लोग समवाय संबंध बोलते हैं, है ना. सो अग्नि, वायु तथा आकाश इसमें समवाय संबंध से है. इन्हीं से इसमें संपूर्णता और विशेषता आती है. व्यापदेशस्तु भूयसा. द्रव्य में पांच महाभूतों के होने की बाद भी किसी एक महाभूत की अधिकता होती है. इससे उसे पार्थिव, जलीय, वायवीय, आग्नेय आदि कहा जाता है. द्रव्य हैज द प्रिडोमिनेंस. द्रव्य हैज द व्हाट टू से, द्रव्य इज मेड अप ऑफ 5 महाभूत दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट इसमें भी कोई द्रव्य अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंट रहता है, कोई द्रव्य जलीय महाभूत प्रिडोमिनेंट रहता है, कोई द्रव्य पार्थिव महाभूत का प्रिडोमिनेंस रहता है. ठीक है. So Dravya is made up of Panchamahabhuta, but it has the predominance of one Mahabhuta in it. So that is why the Dravya is classified into 5 types according to the predominance of Mahabhuta that is present in it. ठीक है. Each one has many guna. Each Dravya or has many guna, and each Mahabhuta also has many guna. But each and every Mahabhuta has one Vishishta guna, special quality, and others सामान्य, general qualities. Even these general qualities also somewhat specific. Gandha guna is the Vishishta guna of Prithvi Mahabhuta. Okay. While Guru, Khara, Kadina etc. are its other gunas. In the same way,
For all the rest Mahabhutas, there is a special guna, and there are other general qualities also present in it. Shabda is the special guna of Akasha Mahabhuta, Sparsha is the special guna of Vayu Mahabhuta, Rupa is a special guna of Agni Mahabhuta, Rasa is a special guna of Jala Mahabhuta, and Gandha is a special quality of Prithvi Mahabhuta. This is the Vishishta guna, and they also have other gunas present in it. Okay. Now we will discuss about Rasa and Anurasa. What is Rasa and what is Anurasa? Tasmat na ekarasam dravyam bhuta sankata sambhavat na egadoshastado roga tatra vyakto rasaha smrita avyakto anurasaha kinjitande vyakto abhicheshyate. पंचमहाभूत के मिलने से द्रव्य की उत्पत्ति होती है. दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. पंचमहाभूत का मिक्सिंग की वजह से द्रव्य की उत्पत्ति होती है. अतः कोई भी द्रव्य एक रस वाला नहीं होता है. इसी प्रकार कोई भी रोग, कोई भी डिसीज भी एक दोष वाला नहीं होता है. द्रव्य में जो स्वाद, जो टेस्ट व्यक्त होता है उसे रस कहते हैं. जो स्वाद अस्पष्ट रहते हैं या बाद में कुछ स्पष्ट होता है या थोड़ा स्पष्ट रहता है उनको अनुरस कहते हैं. That is, in this log we are defining rasa and anurasa. Among taste present in a substance, that which is clearly manifested is designated as rasa or primary taste, and other taste which are not clearly manifested or which are understood at the end are called as anurasa or secondary taste. Clear? So this is rasa and anurasa. Now we will discuss about guna. है ना? What is guna? गुर्वादयो गुण द्रव्यो पृथ्वीव्यादो रसाश्रये रसेषु व्यापतिष्यन्ते साहचर्यो उपचरतः. गुर्वादि गुण के बारे में we studied in आयुष्काम्यम अध्याय. गुरु मंद हेम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्यय. गुर्वादि गुण are 20 in number. We studied already about it in first chapter. गुरु आदि गुण भी रस की आश्रय पृथ्वी आदि द्रव्यों में ही रहते हैं. गुरुवादि गुण is also present in पृथ्वी आदि द्रव्य. रसों में उनका व्याप्ता रहना केवल साथ होने से औपचारिक रूप से कहा जाता है. Guru and other gunas present in Prithvyadi Dravyas are residing in rasa. Gunas are attributed to the taste because of intimate coexistence, that is Samavaya Sambandha. Guna, rasa, etc. remains in a Samavaya Sambandha in Dravya. Okay. Guru and other gunas have already been explained in the first chapter that I already mentioned. In the text of Ayurveda, these qualities are ascribed to the taste. This attribution is only categorical. Strictly speaking, the gunas actually pertain to the Mahabhutas present in the substance. As both the qualities and also taste are present in the same substance intimately. Intimately matlab Samavaya Sambandha. And taste being recognized easily, the qualities are categorically attributed to the taste. Okay? So, Gurvadi Guna is also present in Dravya. But taste is more predominant. It can be understood very fast. That is why Rasa Adi is said. Next, we will study about Parthiva द्रव्यों के स्वरूप और गुण क्या क्या है. पार्थिव द्रव्य लक्षण, क्वालिटीज ऑफ पार्थिव सब्सटेंसेस. तत्र द्रव्यम गुरुस्थूल स्थिर गंध गुणोल्बणात् पार्थिवम गौरवस्थैर्य संघातो उपचयावहम. पार्थिव द्रव्यों के स्वरूप और गुण. जो द्रव्य गुरु हेवी, स्थूल थिक, स्थिर सॉलिड और गंध गुण की अधिकता वाला है वह पार्थिव होता है और यह शरीर में भारीपन, स्थिरता, कठिनता और उपचय अर्थात पुष्टि करने वाला होता है. वही द्रव्य पार्थिव द्रव्य है. नेक्स्ट, जलीय द्रव्यों के स्वरूप और गुण. द्रव शीतला कॉल्ड, गुरु हेवी, स्निग्धा ऑयली, मंदा स्लो, सांद्रा सेमी सॉलिड और रस की अधिकता वाला होता है और यह शरीर में स्निग्धता, विष्यंतना स्रोतों में स्राव करना, क्लेदन गीला करना,
प्रहलाद हृदय में प्रसन्नता देना, और बंधन बॉन्डिंग में हेल्प करने वाला, ये कार्य करता है। कौन? जलीय द्रव्यम ये सब कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट, आग्नेय द्रव्य। आग्नेय द्रव्य का लक्षण, क्वालिटीज ऑफ आग्नेय सब्सटेंसेस। रूक्ष ड्राई, तीक्ष्ण पेनेट्रेटिंग, उष्ण हॉट, विषता स्वच्छ, सूक्ष्म माइन्यूट और रूप गुण की अधिकता वाला द्रव्य आग्नेय होते हैं। और ये द्रव्य शरीर में दाह बर्निंग सेंसेशन, कांति इज अ वेल मतलब कांति इज स्पेशल ओरा, वर्ण कॉम्प्लेक्शन, प्रकाश और पाक डाइजेशन का कार्य करता है, वही आग्नेय द्रव्य है। नेक्स्ट, वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य के स्वरूप और गुण, वायु प्रधान द्रव्य रूक्ष ड्राई, विशुद्ध स्वच्छ, लघु लाइट और स्पर्श गुण की अधिकता वाला होता है। और वायव्य द्रव्य शरीर में रूक्षता, लघुता, विषता और अनेक प्रकार का मूवमेंट्स गति और ग्लानि डिप्रेशन उत्पन्न करने का कार्य करता है, वही वायव्य द्रव्य है। ठीक है? और आकाशीय द्रव्य। आकाश प्रधान द्रव्य सूक्ष्म माइन्यूट, विशुद्ध स्वच्छ, लघु और शब्द गुण की प्रधानता वाला होता है। इनसे शरीर में सुशीलता, होलोनेस और लघुता लाइटनेस होती है, वही आकाशीय द्रव्य के स्वरूप है और उसका गुण है। आकाशीय द्रव्य और नाभस द्रव्य। नाभस substance possesses qualities such as सूक्ष्म, विशुद्ध, लघु and it is predominant in shabdam. It produces cavitation and lightness. Cavitation is hollowness and lightness is लघुत्वम weightlessness. Okay? So यही नाभस द्रव्य लक्षण है, आकाशीय द्रव्य का लक्षण है। ठीक है? So in short, when we can comprise this, पार्थिव द्रव्य जो है, पार्थिव द्रव्य गुण क्या क्या है? गुरु, स्थूल, स्थिर और गंध गुण प्रदान होता है। और पार्थिव द्रव्य का शारीरिक कर्म क्या है? गुरुता, स्थैर्यता स्थिरता स्टेबिलिटी, संघाता और उपचय पुष्टि उत्पन्न करता है, वही पार्थिव द्रव्य का शारीरिक कर्म है। नेक्स्ट, आप्य द्रव्य। आप्य द्रव्य का गुण द्रव, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र, यही उसका गुण है। और उसका विशिष्ट गुण क्या है? रसगुण प्रदान होता है आप्य द्रव्य। और उसका शारीरिक कर्म क्या है? स्नेहन, विष्यंदन, विष्यंदन है स्रोतों में स्राव, क्लेदन गीलापन करना, प्रहलादा प्रसन्नता देना और बंधन करता है, बंधन इज बैंडेजिंग करता है, बॉन्डिंग करता है, वही आप्य द्रव्य का शारीरिक कर्म है। थर्ड वन, आग्नेय द्रव्य। आग्नेय द्रव्य का गुण रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशुद्ध एंड सूक्ष्म। और उसका विशिष्ट गुण क्या है? रूप गुण। रूप गुण प्रिडोमिनेंट है आग्नेय द्रव्य। और उसका शारीरिक कर्म दाह, भाव, वर्ण, प्रकाश और पाग करता है। कौन? आग्नेय द्रव्य। वायव्य द्रव्य का गुण रूक्ष, विशुद्ध, लघु और उसका विशिष्ट गुण क्या है? स्पर्श गुण प्रदान होता है वायव्य द्रव्य। और उसका शारीरिक कर्म क्या क्या है? रूक्षता, लघुता, विषता, विचार और ग्लानि की उत्पत्ति होती है। आकाशीय द्रव्य सूक्ष्म, विशुद्ध, लघु और शब्द गुण प्रदान होता है। और उसका शारीरिक कर्म क्या है? सुशीलता, होलोनेस और लघुत्वम लाइटनेस उत्पन्न करता है आकाशीय द्रव्य। So this is about the different kinds of Panchamahabhuta predominant dravyas. Okay, so this is enough for today. I will continue the class in the next session. Until then, take care all of you.